بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پاکستان کے ساتھ میں ہوں ساجد حسین۔ بس مجھ سے ہم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ پاکستان کی شہر سمجھے جانے والا شہر کراچی، اور جو کہ منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اور دنیا کے بڑے شہروں میں اس شہر کا شمار ہے۔ اور یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پہ ہر رنگ نسل کا آدمی بھائی چارگی کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کے جو باشندے ہیں، یہاں کے جو شہری ہیں، کبھی وہ کھمبا گرنے سے مر جاتے ہیں، کبھی کرنٹ لگنے سے، کبھی بارشوں سے، کبھی نالے میں گر جانے سے، کبھی وہ ڈمپر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو حکومت وقت ان معاملات کو حل کرنے کے لیے، یہ جو ایکسیڈنشل ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کے لیے استعفے کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ جائیں، آپ سے یہ شہر نہیں چل رہا، کس طرف شہر کی سیاست جا رہی ہے۔ دوسرے مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا کریں گے تو کام کیسے چلے گا۔ سلمان ہاشمی میں جوائن کیا ہے، عوام پاکستان پارٹی کے رہنما۔ سر خوش آمدید کہیں گے سلمان آپ کو شو میں۔ ایک اور 3 سالہ ابراہیم بچھڑ گیا، کیا کہیں گے؟ ساجد بھائی بہت شکریہ آپ نے شو میں بلایا، اور آپ نے جو شو کا آغاز کرا ہے ایک بچے کے اس سے کرا ہے غمگین، جو کہ ابھی کشیدگی پھیلی ہے ہمارے کراچی میں اور پورے پاکستان میں، میرا جہاں تک خیال ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اتنا وائرل وہ ہو گیا ہے۔ اچھا، ابراہیم کے بارے میں جہاں تک بات ہے تو وہ تو معصوم بچہ ہے، اس نے تو ابھی یعنی اپنا پھول سے وہ کہتے ہیں ابھی اگا ہی نہیں باغ، تو وہ پہلے ہی اس کا بچھڑ گیا۔ اس ماں کے تو یہ تو وہی ماں جان سکتی ہے جس کی اولاد ہے، جس کی گود پوری اجڑی ہے، اور غالباً وہ ایک اکلوتا بیٹا تھا، پہلی چیز، ٹھیک ہے۔ اور 3 سال کا بچہ تھا، کیا پتا تھا کہ میں آج جو جا رہا ہوں تو میری واپسی کبھی ہوگی بھی نہیں ہوگی، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ واقعہ تو ہائی لائٹ ہوا اس سے پہلے، اگر آپ کچھ دن پہلے اس لیے کہوں گا کیونکہ وہ اس سے بھی بڑا ان ایکسیڈنٹ واقعہ تھا جو کہ ڈمپر مافیا کے زرد میں آیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا، ملیر ہاٹ کے اوپر ٹینکر نے، جو کہ ایک خاتون تھی جو عاملہ تھیں، اور وہ بچہ وہاں ضائع ہوا۔ تو یہ واقعہ جو ہے، میں اس بچے کی طرف سے، اور ہماری پوری پارٹی جو کہ پوری ہماری پارٹی کی قیادت ہے، وہ اس بچے کی عیادت میں اور اس کے جو معاملات ہیں، یعنی جو اس کی جو کہہ لیں کہ دکھ کا جو ہمارا اظہار، ہم کل بھی سیکریٹریٹ میں بات یہی ہو رہی تھی کہ ہم اس کے گھر پہ جائیں اور تعزیت کریں، لیکن تعزیت کس منہ سے کریں، کس حکومت کے، کیونکہ بات وہی، انہوں نے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے فاروق ستار صاحب کو بھگایا ہے، صحیح ہے، انہوں نے 3 جماعتوں کے نام بافرض لیے ہیں، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور متحدہ ایم کیو ایم، ٹھیک ہے۔ وجہ چلیں سے میں کال لے لوں۔ ایڈوکیٹ نور ملک صاحب نے جوائن کیا، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے۔ نور ملک صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں۔ تھینک یو سر۔ نور ملک صاحب آواز تھوڑی کم آ رہی ہے، آواز تھوڑی بڑھا دیں پلیز، آواز والیوم کم۔ اچھا پروڈیوسر صاحب آڈیو بڑھائیے گا۔ نور ملک صاحب پہلے ذرا میں وفاق سے آتا ہوں کہ صف ماتم بچھایا ہوا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے، مر گئے، لٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، خان مر گیا، خان بیمار ہے، خان سے ملنے دیا جائے، خان کا ایک چہرہ دکھایا جائے۔ بالآخر خان کا چہرہ دیکھ لیا خان کی اپنی بہن نے، اور باہر آ کے ہی کہا کہ خان غصے میں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یہ جو سب کروا رہا ہے فیلڈ مارشل کروا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بات یہ ہے کہ جو جمہوری راستوں کو نہیں اپنایا جائے گا، جمہوری روایات کو توڑا جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو بولنے کا حق ہے کہ ہم بولیں گے، ہمارے پاس ایک ہی حق ہے اور ایک ہی راستہ اور ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم بات کریں اور اپنی بات آگے پہنچائیں۔ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم جا کے فساد ڈال دیں، جیل توڑ دیں، دروازے توڑ دیں۔ طاقت رکھنے کے باوجود ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جمہور کو پسند کرتے، جمہوریت کو پسند کرتے، آئین کے پابند ہیں، آئین کو پسند کرتے، قانون پسند لوگ ہیں۔ آج خان صاحب سے ملاقات کی خوش آئین بات ہے، مگر ایک بہن کو ملنے دیا، باقی بہنوں کو ملنے نہیں دیا، نہ ہی قائدین جو ہمارے تنظیم کے انہیں ملاقات کرنے دی، نہ ان کے وکلا کو ملنے دیا۔ یہ ظلم ہے، اور ظلم اور زیادتی کا سدباب انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اللہ رب العزت ضرور ایک وقت لائے گا، یہ ظالم سرنگو ہوں گے اور گھٹنے کے ٹیکیں گے ضرور انشاءاللہ۔ شہباز گل کو جانتے ہیں آپ نور صاحب؟ جی جانتا ہوں۔ آپ کی پارٹی کے؟
सर हमारी पार्टी में थे किसी जमाने में, अभी वो पार्टी में है या नहीं है इसका मुझे इल्म नहीं है। आपकी पार्टी के ऑफिशियल पेजेस पर उनकी वीडियोस लगाई जाती हैं और उनका लबो लहजा, उनकी लैंग्वेज, उनके अल्फाजों का चुनाव भी आपने देखा होगा। क्या ये दुरुस्त अमल है? बात करने का हक तो सबको है सर। वो जिस तरह लहजे में बात कर रहा है वो अपनी काबिलियत के हिसाब से बात कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। बात करने का सबको है, बात करने से रोक नहीं सकते। यहाँ पे ये जुल्म है कि हमें मुलाकात अपने कायद से नहीं करने दी जाती। इस बात से आप बात नहीं करते, कभी भी मैंने महसूस किया इस बात को। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप भी तो ये बात करें कि भाई इन्हें भी तो मिल लेते हैं, इनके साथ ज्यादती का तो सदैव करें, कोई सदैव नहीं है इसका, ये भी तो देखें थोड़ा सा। नहीं तो सभी तो मिल रहे हैं ना, अभी 10-15 दिन हुए, आज फिर मुलाकात हो गई आपकी। अरे सर 1 महीने के बाद, तकरीबन 1.5 महीने के बाद मुलाकात हो रही है। और वो भी इस तरह मुलाकात हो रही कि ना होने के बाद खबर, इसको मुलाकात कहते हैं। नहीं तो फिर आप भी कौम से माफी मांगे ना। जेल मैनुअल है उसके हिसाब से मिल लेते हैं, पीटीआई वाले मिल रहे हैं। नूर मलिक साहब, पीटीआई वाले आप कौम से माफी मांगे ना। आप लोग तो कह रहे थे कि खान बीमार है, खान को कुछ हो गया, था तो कुछ भी नहीं, वो तो चौको चौबंद है। जब खान से मुलाकात नहीं करने देंगे, हमारे लीडर से मुलाकात नहीं करने देंगे, उसकी कोई खैर खैरियत नहीं आएगी, तो हमारे दिल में तहफ़्फ़ुज़ात तो पैदा होंगे, या वो भी हक नहीं रखते हम। ये तो हुकूमत कह रही है सब सही है। हक रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये बताइए सबसे पहले। हुकूमत कह रही है सब ठीक है, हक है कि नहीं है? हुकूमत पे यकीन नहीं है। हुकूमत कह रही थी सब सही है। हुकूमत पे कैसे यकीन करें? हुकूमत पे यकीन करें जो फॉर्म 47 की पैदावार है, जो आईनी हुकूमत ही नहीं है, उस हुकूमत पर यकीन करें। जो चोर रास्ते से उस हुकूमत में आके बैठ के उन पे यकीन करें। जो हर काम अपनी फलाह बहबूद के लिए कर रहे हैं, अवाम को भूल गए। कराची में कतर का ठकना ना, 3 साल का मासूम बच्चा जहां हो गया, मारा गया, कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ की मशीनरी कहाँ की है? क्योंकि वो तो यौम तासीस मनाने में मसरूफ थे। चले ये भी बताइएगा, मेरे शहबाज गिल से लेके इमरान रियाज से लेके मुईद पीरजादा से लेके और भी कई बहुत सारे लोग गले में तबला डाल के बजा रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपसे अभी खबरें गर्दिश कर रही है कि नोटिफिकेशन भी निकल रहा है, सब सही है, ईच एंड एवरीथिंग। तो फिर अब क्या होगा? आप लोगों को तो वही मुंह की पड़ गई फिर। एक बात बताऊं मैं आपको। जी। आइन की पाबंदी हुकूमत है ही नहीं। अच्छा। जब आइनी रास्ता अख्तियार नहीं करना, आइन के हिसाब से काम नहीं करना, तो उनसे क्या उम्मीद रखे, क्या बाइज रखे? ये सारी बातें वहां अच्छी लगती हैं जहां आइन की पासदारी की जाती है, आइन की हुक्मरानी हो। या आइन कौन सा है जिसकी हुक्मरानी है भाई? यहाँ तो हुक्मरानी उसकी है जिसकी वो मैं बात कहूंगा तो फिर कहीं और बस बात चली जाएगी। मैं कहना चाहता जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं चुप हो गया इस बात को कहते कहते कि बात की और चली जाएगी। बहरहाल आइन की पासदारी जिस मुल्क में होती है, जो आइन की बात होती है, वहाँ ये सारी बातें तो फिर आप इस मुल्क में कौन सा आइन है? आप ये आइन है मुझे बताइए ना। आप ये भी कह के को थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि आप कहते कहते चुप हो गए, तो ये भी कहते कहते थोड़ा सा बोल ही दे के मकाफात अमल है साजिद भाई, हमने भी जो बीज बोया वही काट रहे। काश कि हमने ऐसा किया होता। हमारे तो भाई तो मेरे भाई तो ये थी कि ऐसा किया जाता ना, किया खान साहब ने, तभी आज भुगत रहे वो। खान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तभी भुगत रहे हुआ। खान ने लोगों की माए बहने के रखा होता, उन्हें टाइट रखा होता, तो आज इनमें हिम्मत ना होती, इतने बहादुर ना बनते होता। खान ने लोगों की माए बहने जेलों में डाली थी, अब अपनी बारी है। नहीं डाली सर, वो कानून को जितने भी केसेस थे वो खान की हुकूमत से पहले के बने हुए थे, और कानून अपना रास्ता बनाता है। खान ने किसके ऊपर जुल्म किया मुझे बताइए? खान को करके कहा कि आप तुझे छोड़ूंगा नहीं। खान अपने जलसों में कहते थे, खान अपने जलसों में कहते थे कि कल फला विकेट गिरेगी, और नैब अगले दिन उसके घर पहुंच जाती थी। ऐसा नहीं है कि विकेट गिरती थी। विकेट का इशू ये था कि लोग पार्टियां छोड़ के पार्टियां बदलते, मुफाद परस्त लोग हमेशा पार्टियां बदलते। आज हमारे साथ भी जो लोग हैं वो मुफाद परस्त जो थे वो चले गए, मुखलिस मौजूद है। ऐसे कल हमारा वक्त दोबारा इंशाल्लाह जब आएगा तो आप देखेंगे कैसे कैसे लोग हमारे साथ आते हैं। तो एक सियासी बयानात भी कुछ होते हैं, सियासी चीजें भी कुछ होती है, देखनी जरूरी होती है। हमेशा आप बिल्कुल सुकून के साथ नहीं बैठ सकते, ये आप ध्यान में रखिएगा साजिद भाई। क्या खान से की जाती है, हालात को देखने के बाद की जाती है। आखिरी मेरा आपसे सवाल है, क्या खान से गलती नहीं हुई कि उन्होंने फैसल वाडा को भी अपना जिगरी बोला, उन्होंने जहांगीर तरीर को भी जिगरी बोला, हलीम खान को भी गले लगाया, आज वो सारे छोड़ के चले गए? खान ने देखा है कि ये लोग जमहूरियत से हट रहे हैं और पटरी से उतर रहे हैं, गैर कानूनी कामों में जा रहे हैं, खान ने सबको बाहर कर दिया। आप इस बात की तारीफ भी तो करेंगे ना। उसको एटीएम कहते थे जहांगीर तरीन को, खान साहब ने पहले फुर्सत में निकाल दिया 3 स्कैंडल के ऊपर। क्या ऐसा कोई करता है? ये खान का जिगरा है जो ये बातें करता है, ऐसे काम करता है। कोई करके तो दिखा अपने एटीएम को बाहर, खान ने निकाल दिया। तो गलती तस्लीम करते हैं, उन्होंने डैमेज किया आपको। इस बात की गलती सर, आपको सच के रास्ते में चलना आसान अगर होता तो ऐसे ना शहीद होते हमारे बहुत सारे। हमारा इमाम हुसैन शहीद ऐसे नहीं हो गए,
शहादत की वजह ये थी कि हक और सच का रास्ता उन्होंने अपनाया, उन्होंने बैत नहीं की यजीद की। चलें, अगर अब बैत आप कर लेते तो आज वो भी शहीद ना होते। नूर मलिक साहब, इस्लामी टच आप दे रहे हैं, पीटीआई वाले हैं इस्लामी आप। टच नहीं दे रहा, मैं हकायक बयान कर रहा हूँ। और हकायक अगर इस्लामी हमारी जिंदगी तो इस्लामी के हिसाब से होगी ना बहुत। हाँ। हमारा प्रेम्बल आइन का यही है कि हुकूमत जो है अवाम की होगी। आप ये देखें ना, प्रेम्बल भी तो पढ़े हमारा, वो पढ़ता कोई नहीं। आइन के पाकिस्तान के कानून जितने भी होंगे वो आइन से हमारे चले ठीक है, आखिर में चूंकि नहीं करेंगे। कराची का बच्चा शहीद हो गया और उसको किसी ने नहीं ढूंढा, वो एक कचरा चुनने वाला बेचारा निकाल के ले आया। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे एमपीए मैंने वहाँ जो फॉर्म 45 के थे, जाहिर हो तो उसको सिलेक्टेड नहीं है वो, यानी पोजीशन में नहीं है। इसके बाद आलमगीर खान वहाँ मौजूद थे, उन्होंने अपनी पॉकेट से मशीनरी मंगवाई थी जो कर सकते थे, हैवी मशीनरी। हुकूमत सिंध ने कोई मशीनरी प्रोवाइड नहीं की, ये मीडिया बता रहा है, मैं मौजूद नहीं था वहाँ पे, मीडिया जराये से पता चला। और वो कचरा चुनने वाले बच्चे ने उसको ढूंढ के निकाला। तो कहाँ से सारे हुकूमती अराकीन, इतना बड़ा मेयर कराची जो कहता है कि मैं कराची को पेरिस बना दूंगा, वो कहाँ था? उसको के गटर का ढकना नहीं था, क्योंकि वो तो योम तासीस मना रहे थे, 58वां योम तासीस मना रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे, भूल गए थे कि अवाम भी पीछे है, लोग मर रहे हैं, भूल गए थे बिल्कुल। अल्लाह पूछेगा इनको सर जरूर, ये कहीं बख्शे नहीं जाएंगे, आप देखिएगा जरूर, ये खून रंग लाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एडवोकेट नूर मलिक साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आप मौक़िफ़ दे रहे थे, एक वक्फा लेते हैं सर, वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुशआमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और फोन कॉल शामिल करते हैं। नौजवान माहिर कानून ने हमें सब ज्वाइन किया है, खान गफ्फार खान साहब ने। सर खुशआमदीद कहेंगे खान गफ्फार खान साहब आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया साजिद भाई। खान साहब ये बताइएगा कि ये जो 27वीं तरमीम और 26वीं तरमीम के खिलाफ जो वकला सरापा एहतजाज थे, सिंध बार के इलेक्शन हो गए, कैसे देखते हैं इन तमाम मामलात को? अब कुछ लगता है मामला ठंडे पड़ गए। देखें, किसी भी मास मूवमेंट का चलना और उसमें इतने बड़े सेक्शन को इन्वॉल्व करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन जिस तरह मैं पहले भी आपके प्रोग्राम्स में कहता रहा हूं कि सिंध के वकला ने बिलखुसूस ये मौक़िफ़ अपना लिया है, ये स्टैंड ले लिया है कि हमें 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम तो अपनी जगह पर एक सब्सटेंस रहा, लेकिन जो असल सिचुएशन है, जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, कोई भी ऐसी तरमीम 26वीं हो 27वीं। जी सर कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज प्लीज। साजिद भाई, मैं ये कह रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम हो 27वीं हो, जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो ये है कि पाकिस्तान में जब तक अदालतों की सुप्रीमेसी बहाल नहीं होगी, जब तक जुडिशियल इंडिपेंडेंस बहाल नहीं होगा, तब तक आम इंसान को इंसाफ मिलना नामुमकिन सी बात है। आप एज अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से कि जब तक हमारे जजेस में ये माइंडसेट बरकरार रहेगा कि हम एग्जीक्यूटिव के मुलाजिम है और हमारी नौकरी उनके इतने हाथ में है कि वो कभी भी हमें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ट्विच कर सकते हैं, तो फिर वो बुनियादी जो उनकी ओथ ऑफ ऑफिस है उसे पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के वकला ने, खुसूसन सिंध के वकला ने ये स्टैंड प्रीडोमिनेंटली लिया है कि हमें ये चीजें कबूल नहीं है और उस चीज के लिए जरूरी नहीं है कि आप ओवर द नाइट कोई तब्दीली बर्पा कर दें, ओवर द नाइट कोई रेवोल्यूशन बर्पा कर दें। इन चीजों में कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी अमेंडमेंट्स हैं, इनके रिवर्स होने में एक बहुत बड़ा टाइम लगता है। रिवर्स हो ना हो, लेकिन हम जिस चीज पर कायल हैं, जिस चीज पर खड़े हैं, वो इसी चीज पर खड़े हैं। वो बुनियादी उसूल है, सेपरेशन ऑफ पावर का उसूल है, जो हमारी जमहूरियत का कॉम्पोनेंट होता है, जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एक अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो चेक्स एंड बैलेंसेस रख के एक हमारे हुकूमत के ढांचे को चलाने में अपना किरदार अदा करे। खान गफ्फार खान साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, रियली अप्रिशिएट, मैं सारी बातें आपकी तस्लीम करता हूँ, लेकिन ये कि जो पार्लियामेंट है वो कानून साजी करता है, कानून वो बनाते हैं, पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है, पार्लियामेंट इदारों की माँ है। लेकिन आप जो ये एहतजाज कर रहे हैं, जो तहरीक चला रहे हैं, आप कह रहे हैं हम नहीं मानते, 27th अमेंडमेंट में हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जजेस के इख्तियारात छीने गए हैं, ठीक है, लेकिन अब ये सारे मामला तो फिर कोई आने वाली हुकूमत ही शायद कर सकती है। लग तो नहीं रहा इस हुकूमत की बॉडी लैंग्वेज से कि अब कुछ करेंगे, क्योंकि ट्रेन चली गई है, आईनी अदालत बन गई, मामला शुरू हो गए,
आपको नहीं लगता कि अब वकला के हाथ में कुछ नहीं रहा, और ना वो वकला में स्पिरिट नजर आ रहा है वो जनरल मुशर्रफ के टाइम पे एतजाज एहसन साहब, अली अहमद खुद साहब, जैसे इफ्तिखार चौधरी क़यादत कर रहे थे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जहां तक के इस आर्ग्यूमेंट की रेलेवेंस रहा, जो कि हमारे बहुत सारे दोस्त आपको कहते हुए नजर आएंगे कि पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी कानून बना सकती है। मैं उन तमाम अपने दोस्तों से ये सवाल करना चाहता हूं कि आज पार्लियामेंट पाकिस्तान के दस्तूर को तब्दील करने का फैसला करे और ऐसा दस्तूर बनाए जिसमें इस वक्त की जो भी रूलिंग पार्टी है उसके सरबराह को पाकिस्तान का बादशाह बना दिया जाए, तो क्या पूरी आवाम को ये बात कबूल होगी? नहीं। क्या ऐसा कानून बना दिया जाए जिसमें किसी भी इदारे को पाकिस्तान में ऐसी सुप्रीमेसी दे दी जाए जो कि लाजवाल हो, कभी भी खत्म ना होने वाली हो? क्या आप सबको वो बात कबूल होगी? क्या ऐसा कानून, क्या ऐसा दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी जाए कि पाकिस्तान में जो कोई भी इदारा है उन तमाम इदारों के सरबराह हमारे फैमिली के मेंबर्स लगेंगे? तो होने पर तो कानून बनाया जा सकता है, लेकिन कहने का मकसद है कि क्या इस तरह के कवानीन, क्या ऐसी अमेंडमेंट्स, क्या ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमारे किसी भी ह्यूमन सोसाइटी में पॉसिबल होता है? क्या हमें एज बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जमहूरियत को ऑब्जर्व करते हुए हमें क्या ये चीजें कबूल होंगी किसी भी सिविलाइज सोसाइटी को? मेरे भाई, कहने का ये मकसद है कि जब भी आप किसी भी सोसाइटी को रूल करते हैं, इट हैज टू बी रूल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द डेमोक्रेसी, इट हैज टू बी रूल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। आप इस तरह की आर्ग्यूमेंट लेकर पाकिस्तान को मजीद अथॉरिटेरियन स्टेट बनाना चाहते हैं तो सो बिस्मिल्लाह आप बना दीजिए, लेकिन मुझे जितने चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए नजर आ रहे हैं इस तरह के अथॉरिटेरियन फैसले करने के बाद, वो आपको टाइम बताएगा कि हम कितने मजीद प्रॉब्लम्स में फंस चुके होंगे। बाय देन वी विल हैव नो पावर टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन आवर सिचुएशन दैट वी आर। आप नौजवान माहिर कानून हैं और बड़ा कम उम्री में अच्छा एक्सपीरियंस ले चुके हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ी अच्छी गिरफ्त है आपकी। बड़ा टेक्निकल एक क्वेश्चन आपसे मैं करने जा रहा हूँ। इदारे अपनी लिमिट से, अपनी जो इख्तियारात से तजावुज करते हैं, यही इल्जाम अदलिया पर लगाया हुकूमत वक्त ने कि आप हमारे मामलात में मुदाखलत किया करते थे, तो हमने शायद अब आपको भी जिस तरह आपने कहा कि इख्तियारात छीन लिए गए, तो ये भी तो एक अलमिया रहा है कि हमारे इदारे तजावुज करते अपना जो उनकी जुरिस्डिक्शन है उससे वो आगे निकल जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए भी तो कोई लॉ होना चाहिए। अजीत भाई, इसकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान में आप जितनी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएंगे उतनी आपको बेहतरी नजर आएगी। इस चीज का जिस प्रॉब्लम को आपने हाईलाइट किया है, इसका ये हल नहीं है कि आप किसी भी इदारे को, क्योंकि उनकी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रही है पाकिस्तान में हुकूमती मामले में, आप उस इदारे को मुकम्मल तौर पर मार्जिनलाइज कर दे, उनका पावर खत्म कर दे कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन्स में। कहने का ये मकसद है कि पाकिस्तान में कौन सा इदारा अपने दस्तूर के रोल के मुताबिक काम करता रहा है। आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में हमेशा इंटरवेंशन की है। आपकी जो इलेक्टेड, सो कॉल्ड इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की उमंगों पर पूरा उतरने में मुकम्मल तौर पर नाकामी का मुजाहरा किया है। इसी तरह बाकी इंस्टीट्यूशंस है, पुलिस को उठाकर देख लें, रेवेन्यू की कारकर्दगी उठाकर देख लें, इलेक्शन कमीशन इज इटसेल्फ अ क्वेश्चनेबल इंस्टीट्यूशन, देयर कंडक्ट हैज बीन अ वेरी स्ट्रांगली कंडक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो आप क्यों किसी भी एक ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन को मार्जिनलाइज कर रहे हैं? आप उनकी अकाउंटेबिलिटी करें, जजेस की अकाउंटेबिलिटी करें, उनके जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजीद एम्पावर करें, उनमें मजीद आप इलेक्टेड मेंबर्स लाए ताकि एक एक जज की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करके वो फैसला करें कि इस बंदे को ऊपर आना चाहिए, इस बंदे को नहीं आना चाहिए। आपकी लोअर जुडिशरी का हाल मैं आपको क्या बताऊं, हम कोर्ट्स में जिस तरह देख रहे होते हैं, आम इंसान पिस रहा है। एब्सोल्युटली एक केओटिक सिचुएशन में आम आदमी की फ्रस्ट्रेशन है, एंड देयर इज नो वन टू अकाउंट फॉर दैट फ्रस्ट्रेशन। मिलियंस ऑफ केसेस हैव बीन पेंडिंग इन द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली इन द लोअर कोर्ट। उस चीज के लिए कोई भी रिफॉर्म नहीं आता, उस चीज के लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आती। आपको जब अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आपको आगे लाना है, उससे प्रोटेक्ट करना है, उस चीज के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जैसे एक इंपॉर्टेंट इंटरनल इंस्टीट्यूशन का आप बुनियादी तौर पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन खत्म कर देते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री इज दिस? जबरदस्त, बेहतरीन। समझ नहीं आता। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड
کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ہم بہترین کس طرح ایز اے ڈیموکریٹک سوسائٹی ایوالو کر سکتے ہیں. زبردست سر بہترین دس سیمس لائک اے بنانا ریپبلک. بہترین سر بہترین ریلی اپریشیٹ بہت خوبصورت انداز سے سیلیبریٹ کیا آپ نے. بہت شکریہ خان غفار خان صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت اچھی ڈیٹیل میں آپ نے روشنی ڈالی اور بجا فرمایا کہ اپنے انٹرسٹ کے لیے آپ لوگ تگودو کرتے ہیں لیکن لوور کورٹس کا حال اور جو کامن مین ہے بہت برا ہے سر. اس کے لیے ہونے چاہیے تھی امینڈمنٹ. سلمان کیا کر رہی ہے عوام پاکستان؟ عوام پاکستان ابھی ہمارا اسٹارٹنگ پیریڈ ہے. کل بڑی آپ لوگوں کی تصویریں وائرل ہوئی. بالکل کل مفتہ اسماعیل صاحب کی زیر صدارت اور شیخ صلاح الدین صاحب جو کہ ہمارے کراچی ڈویژن کے کنوینئر ہیں اور تمام کیبنٹ کے کراچی کے لوگ اس میں شرکت انہوں نے کری ہے. تمام لوگوں کے نوٹیفیکیشن نکلے ڈسٹرکٹ عوام کے لیے کیا کیا؟ عوام کے لیے سر بات یہ کہ دیکھیں ابھی ہمارا لولی پاپ تو دیکھیں لولی پاپ تو خیر ہم نہیں کہیں گے. ابھی ہمارا پھر وہی بات آئے گی کہ ابھی ہمارے پاس کوئی قیادت نہیں. تو آپ لوگوں کو ووٹ کیوں دیں؟ آپ لوگوں کو کیوں چنیں؟ سوال بہت اچھا ہے. یہ میں آپ کو اس کی پالیسی عوام پاکستان کی جو ہے نا ہاں بتائیں نا جبھی تو میں نے سوال کیا ہے. بالکل میں آپ کو اس کا بہت اچھی طریقے سے گائیڈ لائن دیتا ہوں. وجہ یہ صرف اتنی سی کہ عوام پاکستان میں جتنے لوگ شامل ہیں نا جو کہ ہمارے مڈل کلاس طبقے سے لے کر اپر کلاس تک وہ سارے ایک تو پڑھے لکھے ہیں تجربے کار ہیں. شیخ صلاح الدین کون ہے؟ کس پارٹی سے تھے پہلے؟ شیخ صلاح الدین صاحب جو تھے وہ باقاعدہ ایم کیو پاکستان سے ان کی وابستگی رہی ہے. لیکن دیکھیں وجہ کیا ہے الگ ہونے کی؟ سب سے بنیادی مقصد یہ وجہ کیا ہے سب نے دیکھ لیا نا. سب عوام نے بھی دیکھ لیا ہے. لوگ جو پارٹی دیکھیں ایک پارٹی کے اندر اگر میں ہوں نا تو میں پارٹی کی حد تک. سلمان ہاشمی نے اپنے ڈسٹرکٹ کورنگی میں کیا کیا؟ ابھی ہم کیونکہ عوام کے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں جیسے کہ آپ کو بتاؤں کسی کے تھانے کے مسئلے ہیں, کسی کے اکثر کچروں کے مسئلے ہیں, کسی کے آگے جیسے مین ہال جو کھلے ہوئے ڈھکن کے. یہ بات ابھی بچے کی اس پہ ہوتی جو کہ میں نے ویڈیو بھی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے, میں آپ کو ابھی سینڈ بھی کر دوں گا. کورنگی ٹاؤن کے اندر ٹاؤن چیئرمین اور کیا کہتے ہیں کورنگی ٹاؤن کے اندر ٹاؤن چیئرمین اور یو سی چیئرمین جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے, اور اس میں ایسے کہہ لیں کہ ابھی ایک ہمارا وہاں 3.5 نمبر پہ پارک ہے. آپ اگر وہ 3.5 نمبر اور وہاں مختلف اور پارک ہیں اگر آپ اس کا وزٹ کریں تو وہاں تمام چیزیں آپ کو مٹیریل پڑا ہوا ملے گا, لیکن اس کو یوز نہیں کرا. آپ کروائیں نا, آپ نے کیا آواز اٹھائی؟ آواز دیکھیں نا, پھر وہی بات پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, میئر ان کا ہے, وزیر اعلیٰ ان کا ہے, ساری چیزیں تو ان کے پاس. آپ کی پارٹی کیا ویلیو ایڈ کر رہی ہے کراچی شہر میں؟ سر ہمیں اسپیس دیا جائے, ٹھیک ہے, ہمیں دیں, گورنمنٹ ہم سے کرے بات کرے, ہم انشاءاللہ کر کے اسپیس تو تب دے گا جب عوام آپ کو ووٹ دے. عوام دے گی نا. عوام دیکھیں پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, یہ جتنے پاپڑ لوگ بیچ رہے ہیں نا آج بھی بیچ رہے ہیں, اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, ابھی بھی صاف اپنے آپ کو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم صاف ہی ہیں. صحیح ہے, اپنے آپ کو صفاف بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم صاف ہیں. ان سے یہ پوچھیں پیپلز پارٹی صاف ہے کہاں سے؟ یہ سارے جو نظام 2 دہائیوں سے چل رہا ہے پیپلز پارٹی, ابھی مجھے یہ بتائے اس بچے کی جو بچہ ابھی اس دنیا میں ہے ہی نہیں, اللہ پاک اس کو میں جنت میں کہہ لیں کہ وہ الفاظ یہ نا, بات یہ میں کیا کہوں, میرے گھر کی اولاد اگر جائے میں تو شیر کو آگ لگا دوں, صاف الفاظوں میں یہ کہوں, سیدھی بات ہے, اور میں ان کے گلوں میں اٹک جاؤں, لیکن غریب کا کوئی نہیں ہے. جیسے کہ ابھی ہمارے وکلا صاحب کہتے ہیں کہ غریب کا جو ہے نا لوور مڈل کلاس تو اس کو نوچا جا رہا ہے. بہت سارے واقعہ کورٹ میں ہوتے ہیں, وہ وابستگی ان کی ماہر قانون ہے ماشاءاللہ سے, اور وہ کیا کہتے ہیں وکلا سے ان کا وابستگی رہی اور ہیں معاملات کر رہے, تو ان کو پتہ ہے کہ تمام غریب طبقہ ہی وہاں پستا ہے کورٹ کچہریوں میں, تھانے میں, ہاسپٹل جائیں آپ. ایک ہاسپٹل اگر کسی کا پیشنٹ جاتا ہے نا غریب کا تو وہ 10 روپے کی سرنج بھی نہیں ہوتی ہے گورنمنٹ اسپتال میں. آپ جائیں کورنگی 5 نمبر کے ہاسپٹل میں جائیں, اور وہی اگر کسی سائیں سرکار کی کال آ جائے نا تو اس کے لیے ایک ایمرجنسی بیڈ بھی پرووائڈ کر دیا جاتا ہے, ایک VIP کے ٹریٹمنٹ ان کو دی جاتی ہے. کہاں پر ہے یہ ہاسپٹل؟ کورنگی 5 ہے, آپ چلے جائیں. اچھا
सिंध हुकूमत में एक तो तमाम सही है। ऊपर के लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी के कायनात ठीक हैं है। पहली, दूसरा ओके। तमाम इदारों में भी पीपल्स पार्टी है। ठीक आप है। जिस इदारे का, रेलवे हो, सीए ओके। हो, मैं और भी एंटी करप्शन हो, तमाम इदारे, पुलिस हो, कोई भी इदारा हो, करप्शन इतनी फैल गई, किसी का लेके जहां जाएंगे ना कुछ दोगे हाँ। काम हो जाएगा। नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं है, गलत आए हो, गलत दरवाजा खटखटाया है। सही है। सही है, सब कुछ है। पीपल्स पार्टी के पास पैसा भी है, पीपल्स पार्टी के पास ताकत भी है, सब कुछ है, लेकिन करना नहीं चाहती है, कोई काम नहीं करना चाहती। जमात इस्लामी भी अपने पापड़ बेच रही है, कोई काम नहीं करना। आप बताएं आपने क्या किया, क्या करना सर, चाह रहे हैं? हमारी पार्टी को देखें, अभी फिर वही बात, हमारी पार्टी को स्पेस चाहिए, ग्राउंड चाहिए, अभी हम बना रहे हैं। अच्छा। सीधी बात है, वक्त लोगों को जोड़ लें, ठीक है। जहां जिनके मसाइल होंगे उनके साथ जाएंगे, और जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे, ठीक है। ठीक है, जा रहे हैं, चाहे वो अदालतें हैं, किसी इदारे हों, जहाँ भी हैं। अभी हमारे कल की मीटिंग में ये हमारे हुई है कि हम मेयर कराची या अपना क्या कहते हैं सीएम हाउस और या ठीक है। अपना प्रेस क्लब ठीक है, चले। एक एहतिजाज करेंगे अच्छा। बच्ची, बिल्कुल इंशाल्लाह, चले जी। और उस पे लोगों के साथ बातचीत हो रही एहतिजाज है। में आएगा कौन? मिस्टर पहले हम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनकी चले जगह जी। निगरानी चले होगी। जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा शाद मुझे साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।